Hello and welcome to the fifth session of business organization. In this session we will going to discuss about the company and the topic will be covered, that is introduction of the companies, features of a company, kind of companies, distinctions between public and private company, privilege of private company, merits of company and demerits of a company. So now yes, we were moving towards the introduction. Yes, as we discuss about starting with the discussion about the company, we come to know about what is the company. Company is basically a business organization. It is association or a collection of an individual who provide some form of capital to gain a profit. So that means ये एक collection होती है या ये एक association होती है individuals की जो कि किसी न किसी तरीके की capital invest करते हैं just to gain a profit. What was the slide is mentioning about the introduction? A company is an incorporated voluntary association of a person in business having a joint capital divided into the transferable share of a fixed value along with the feature of a limited liability, common seal and perpetual succession. That means it is again a incorporated voluntary association. ये एक incorporated voluntary association होती है एक individual की जो कि which is basically having a joint capital, जो सब मिलकर एक capital invest करते हैं just in form of transferable shares of a fixed value along with the limited liabilities, common seal and perpetual successions. Then yes, there were the few features of a company as we're discussing about. When we're talking about features of company, the first one is the artificial legal person. Yes, हमारी एक company जो होती है, it is very much different from the owners or the founders of the company. So in that terms, the company it itself is a artificial legal person. ये अपने आप में एक artificial legal person है क्योंकि company को perform करने के लिए बहुत सारे laws बनाए जाते हैं. एक legal person ही अपने आप में होता है because it's working through the regulation. And at the same time ये artificial person है. And yes, distinct legal quantity is that means they were very much legal entity from its owner. इसको अपने owner से बिल्कुल अलग माना जाता है. Owners as of having a limited liability concept जो कि हम लोगों ने अभी definition में पढ़ा, जिसकी वजह से इसका owner अपने आप में इससे separate होता है. Two different identities. The person is very much different because the company always have some legal liabilities. They have a common seal concept in it. Then the perpetual succession. Perpetual succession is again a company has a continuous existence and it is its life. अगर company की life की बात की जाए, ये continuous existence इसलिए है क्योंकि company की अगर life की बात की जाए तो company की life कभी भी effective नहीं होती है किसी भी तरीके की death या insolvency या retirement से. उसके members की retirement हो जाए या insolvent या death हो जाए तो in that case किसी भी तरीके की उस पे फर्क नहीं पड़ता है. That is why it's a perpetual succession. Then common seal is that own कंपनी की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है जिस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए उसकी एक कॉमन सील होती है जिसको एक कंपनी का सिग्नेचर भी हम लोग कह सकते हैं. Then the limited liability. If we are talking about the limited liability, so limited liability is members of a company is limited to the value of a share subscribed. So उनकी अपनी खुद की लिमिट होती है जो कि उनको सब्सक्राइब किया जाता है. तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं the member cannot ask to pay anything more than what due to be paid. So in a simple terms, shareholder cannot be attached to the debt of a company which is holding the following paid. That means उनके पास जितनी भी liabilities हैं, उनके पास जितनी भी funds जनरेशन के एस्पेक्ट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं के कंसेप्ट में होते हैं. वो किसी भी तरीके से अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट. देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. यस, इट्स अ फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी. आप अपनी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो. सो फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी. देन सेपरेशन ऑफ ओनरशिप्स एंड मैनेजमेंट. यस, एज वी नो दैट कि एक कंपनी नॉर्मली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है. देयर वर नंबर्स ऑफ मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स इन दैट. सो इन दैट केस number of shares are very large. मतलब who are the owner of the business is fairly large one in numbers. So in that concept हमारे managers का काम इसलिए अलग हो जाता है कि हमारे owners इतने ज़्यादा होने पर the managers responsibility is to generate the profit to satisfy the owners of the company. So in that case the separation of ownership and management is obviously there.
Then these are the few features which we studied about of a company. ये वो concept है जो कि company के अंदर होते ही होते हैं. So features of a company. Now we were moving towards the kinds of a companies. Kinds of companies यानी कि कितने कितने तरीके की companies basically होती हैं. Companies was very much divided. अगर हम kinds of company में बात करते हैं तो ये n number of तरीके से divided है. So we were starting with the first form जो कि है फॉर्मेशन कि कंपनी एक फॉर्मेशन तरीके से भी डिवाइड होती है कि किस तरीके से वो फॉर्म हो रही है. जिस तरीके से वो फॉर्म हो रही है उस तरीके की कंपनी हम उसे बोल सकते हैं कि ये इस तरीके की कंपनी है. सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन भी हम उसका नाम दे सकते हैं. फॉर्मेशन में सबसे पहला नाम है दी स्टैट्यूटरी कंपनीज. स्टैट्यूटरी वो कंपनीज होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं. इट इज़ बेसिकली डन ओनली इन दी स्पेशल केसेस where it is necessary to regulate some specific purposes, जो कि एक specific purpose को define करने के लिए बनाई जाती है, special cases को satisfy करने के लिए बनाई जाती है. Statutory companies में हम ये डाल सकते हैं, कह सकते हैं a company which is created by a special act of a parliament or assembly or of any state. It is called the statutory company. That means government जब किसी भी तरीके की हमारा जो parliament है या हमारे जो state assembly है जब वो किसी special act या special purpose के behalf पर जब company को create करती है, that comes into the statutory company. Statutory company जो होती है वो जैसे for example SBIs, RBI, LICs, these are the few example of statutory company जो कि special cases के अंदर create की गई है. Then after the statutory company, second is the registered company. Registered company वो होती हैं जो कि company act के हिसाब से registered होती हैं. So a company registered under a company act 1956 is called registered company. वो registered company होती है. These are the governed by the above act and subjected to the rules of a memorandum of the association and article of association. Yes, ये सब वो registered company होती हैं जो कि company act 1956 के act के अंदर आती हैं जिनकी including वहाँ होती है और इन companies को अपनी memorandum of associations और article of associations submit करवाने होते हैं. Then the government companies. Government companies are basically those companies which have a contributions of जिसमें government का contribution होता है सबसे ज़्यादा. यानी government यानी कि जिसमें हमारी government सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है 51%. मिनिमम इज 51%. आप उसे ज़्यादा भी कर सकते हो. सो व्हाट वाज द स्लाइड इज मेंशनिंग government company means any company in which not less than 51% of a paid up share capital is held by the central government and by any state government or any government of state. So in that case हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर जब उनका एक शेयर होता है कंपनी में नॉट लेस देन 51% उसे हम अपनी गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं. तो दैट्स कम्स इनटू द गवर्नमेंट कंपनीज. देन वी आर मूविंग ऑन. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि देयर वाज द फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट कि जब कंपनी फॉर्म होती है तो वो कहलाई जाती है स्टैट्यूटरी कहलाई जा सकती है, रजिस्टर्ड कंपनी कहलाई जा सकती है और गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जा सकती है. एट द सेम दी अनदर कॉन्सेप्ट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट. अगर पब्लिक इंटरेस्ट बेसिस पर अगर एक कंपनी को बनाया जाता है तो वो किस टर्म्स में कही जा सकती है. सबसे पहला है द प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनीज वो होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को स्टार्ट करता है. सो इट इज़ व्हाट एनी काइंड ऑफ इन स्मॉल और बिग बिजनेस जब एक प्राइवेट बेसिस पर करता है रादर देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट इश्यूज तो वो प्राइवेट कंपनी होता है. सो येस अ प्राइवेट कंपनी इज वेरी सूटेबल फॉर carrying on the business of a family and a small concern. It is registered under the Company Act 1956 according to section 3 of a Companies Act, Companies Amendment Act 2002. So yes, private companies को भी अपने आप को Company Acts के rules and regulations के हिसाब से contribute और registered करवाना होता है. And private companies are more suitable for the family businesses or the small scale businesses. So that is what the companies are created for the private public interest. Then second is the more discussions about the private companies. आप ये slide हमें और clear idea दे रही है कि that what is the private company. So private company is one which has the following features. तो ये features होते हैं क्यों कैसे हम private companies और public company को define कर सकते हैं. So in that case these are the few features. The minimum paid up capital is ₹1 lakh. ये सबसे पहला फीचर होता है कि उसकी जो पेड अप कैपिटल होगी वो मिनिमम 1 लाख होगी, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2.
रिक्वायर्ड मेंबर जो हम लोगों को प्राइवेट कंपनी में चाहिए वो 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं. Then the minimum number of a member is 50, यानी कि the maximum number of member. जब minimum number of member हो गए 2, तो maximum हम उसे कहाँ तक लेके जा सकते हैं? till 50. Then fourth, it is prohibited from the issue of a shares to the public. ये prohibited होती है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं कर सकती है, अपनी मार्केट के अंदर शेयर्स को नहीं लेकर आ सकती है. So it is prohibited from the issue of shares to the public. Then fifth, it is prohibited from the transfer of share. That's very obvious. जब एक प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है मार्केट के अंदर, बट ऑब्वियस कि उसे वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकती. So these are the 5 basic features of the private company जो कि डिफाइन करते हैं कि हमारी प्राइवेट कंपनी होती क्या है. Now we were moving towards the public company. Public company क्या होती है? Public company is suitable form of a company for carrying on a business at a large scale involving a huge amount of a capital. Private company में जहाँ हम बोल रहे थे कि एक small या एक medium size of the organization शुरू हो सकती है जिसमें हम लोगों को minimum capital required होती है 1 लाख, इतनी तो minimum होनी ही चाहिए. So same as public company एक अनदर सिनेरियो होता है जिसके अंदर वो एक लार्ज बिजनेस या ह्यूज बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं, एंड दिस कैन बी डन अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2002, और ये अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करवा सकती है. सो व्हाट वाज द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी? सबसे पहला, इसकी जो कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल, जो रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल होती है, दिस इज 5 लाख मिनिमम इसमें 5 लाख की जरूरत होती है. मैक्सिमम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 7 तो मेंबर्स इसके रिक्वायर्ड है ही है अगर आपको किसी तरीके की पब्लिक कंपनी खोलनी है. और आगे कितने नंबर ऑफ मेंबर्स? वो अनलिमिटेड हो सकते हैं. दैट मीन्स देन देयर शुड बी अनलिमिटेड मेंबर फॉर द पब्लिक कंपनी. नाउ हम लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पर 2 कॉन्सेप्ट को समझा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को, और उनके फीचर्स को भी अंडरस्टैंड किया. सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी बेसिस पर भी हम कंपनीज को हम कंपनी को फॉर्म आउट कर सकते हैं, कंपनीज के कंपनी को डिफाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहला है द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. इफ द कंपनी इज एक्चुअली लिमिटेड बाय शेयर, आपकी कंपनी, वो कंपनीज हम ये बोल सकते हैं कि कंपनीज हैविंग एन लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ द वैल्यू ऑफ अ शेयर हेल्ड बाय देम. आपका जब भी किसी तरीके की, जैसा कि हमने बोला कंपनीज एक्ट में, दे वर रिक्वायर्ड टू सबमिट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो इन टर्म्स ऑफ किसी भी तरीके की कैश या they have members have a limited liability, but at the same time they can generate that limits by issuing the shares, value of shares. That is comes into the, जो shares issue कर सकती है, that companies comes into the companies limited by share. Then company limited by guarantee. Company limited by guarantee is basically such the amount of guarantee by each member. This is what, जब एक member अपनी guarantees को represent करता है, that means such a company is defined as company having a liability of its member limited by its memorandum. So it's having a liability of its member limited by its memorandum to such amount as a member may represently undertaking to contribute to the assets of the company in the events of being wound up. जिस केस में आपकी कंपनीज बनाई जा रही है, उस केस में जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्होंने दी होती है, दैट्स कम्स इनटू द लिमिट्स ऑफ इट्स मेंबर्स, जो कि उसके मेमोरेंडम्स में भी डिफाइन होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर कंपनीज मे नॉट हैव एन अ शेयर कैप. दीज काइंड ऑफ एन कंपनी जो गारंटी से बनती हैं, जिसमें मेंबर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, सेट्स परचेज करने में मेंबर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, दिस काइंड ऑफ अ कंपनीज डोंट हैव एन एनी काइंड ऑफ एन अ शेयर issuing. उनके पास शेयर कैपिटल नहीं होती, बट येस दे वर जनरली फॉर्म्ड विदाउट शेयर कैपिटल. तो इस केस में इनकी किसी भी तरीके की शेयर्स नहीं होते, बिकॉज दे वर फॉर्म्ड आउट विद द हेल्प ऑफ गारंटीज. Then another is unlimited company. Unlimited companies are basically company which having a no limit on the liability of its member. That means कि company के जितने भी members होते हैं उनकी किसी भी तरीके की limits नहीं है.
दे हैव एन अनलिमिटेड सिनेरियो, वो कितने भी तरीके के फाइनेंस को जनरेट कर सकते हैं, कहीं से भी पैसा लेकर आ सकते हैं. दैट इज अनलिमिटेड कंपनीज. सो इन दैट कॉन्सेप्ट, इन दैट बिजनेसेस, मेंबर्स हैव अ राइट टू एक्सटेंड देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्सनल प्रॉपर्टीज. उनकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं वो उसको बिजनेस के अंदर यूज करके अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं. दैट कम्स इनटू द अनलिमिटेड कंपनीज. तो वो हमारी हो जाती है अनलिमिटेड कंपनीज. देन अब तक हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, अब तक हम लोग टाइप ऑफ कंपनीज के अंदर 3 तरीके के टाइप पढ़ चुके हैं. जब फॉर्मेशन बेसिस पर बनता है, जब पब्लिक इंटरेस्ट बेसिस पर बनता है, और शेयर बेसिस पर जब बनते हैं. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स जब कंट्रोल बेसिस पर कंपनीज को बनाया जाता है. कंट्रोल बेसिस पर बात करें तो सबसे पहला होता है द होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर आप होल्ड आउट करते हो कंपनीज को, कंपनी पर एक कंट्रोल मेंटेन करके रखते हो. जो मेन कंपनी होती है वो कंपनी के अंदर कंट्रोल मेंटेन करके रखती है. तो दैट इज वेदर वन कंपनी कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ अनदर कंपनी. जब वो एक कंपनी दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, वो आ जाता है होल्डिंग कंपनी. कैसे? इस तरीके से कि जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं होल्डिंग कंपनी के. मतलब जैसा कि अगर इफ आई हैव एन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, इफ आई हैव एन 10 डायरेक्टर्स, तो उन 10 डायरेक्टर्स में से जो 7 डायरेक्टर्स जो हैं वो होल्डिंग कंपनी के भी डायरेक्टर्स हैं. तो इन दैट टर्म्स दिस इज द वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस जिस केस में हम उसे होल्डिंग कंपनी बोल सकते हैं. अनदर इज वेयर नॉट लेस देन 51% ऑफ अ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी. सो इन दैट केस होल्डिंग कंपनी में कम से कम 51% ऑफ शेयर की कंट्रीब्यूशंस होती हैं, उसका कंट्रोल होता है उतना 50, तो वो होल्डिंग अप कंपनी हो जाती है जिसने एक्चुअली होल्ड अप किया होता है, पूरे बिजनेस को कंट्रोल किया होता है. होल्ड अप कंपनीज, दैट कम्स इनटू द होल्ड अप. देन होल्ड अप कंपनी के बाद अनदर इज द सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी इज वन वेयर द कंट्रोल्ड, वेयर वन company control the management of another company, such company so controlled. That means जब subsidiary company वो company हो जाती है जो कि controlled होती है दूसरी कंपनी से, that comes into the subsidiary companies. तो subsidiary companies usually वो हो जाते हैं कि जिसके अंदर एक members की contribution होती है और एक अलग से companies खोली जाती हैं, but yes they were having the same in terms of contribution on managing that the task of that particular company. तो वो हमारी हो जाती हैं subsidiaries company. After that subsidiary company we have the division of our company on the basis of nationality. नेशनैलिटी बेसिस पर डिवीजन, दैट मीन्स कि एक हो सकती है, अगर हम इंडियन डोमेस्टिक की बात करते हैं तो एक हो सकती है इंडियन कंपनीज, दूसरी फॉरेन कंपनीज. इंडियन कंपनीज वो हो जाती हैं जो कि जिनका बिजनेस इंडिया के अंदर ही होता है, दे सिचुएटेड विद इन इंडिया इटसेल्फ, तो दैट कम्स इनटू द इंडियन कंपनी. और फॉरेन कंपनीज कौन हो जाती है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग प्लेस ऑफ इन अ बिजनेस, यानी कि जिनका जो मेन हेड है, जो जहाँ से शुरू हुई है वो बाहर है इंडिया से, बट वो बिजनेस यहाँ पर आके कर रही हैं या किसी भी और मल्टीपल सिटीज में कर रही हैं. सो दैट कम्स इनटू द फॉरेन कंपनीज. तो दो तरीके से हमारी नेशनैलिटी डिवाइड है, वन इज ऑन द इंडियन कंपनी एंड अदर इज ऑन द फॉरेन कंपनी. देन on the basis of an area, on the basis of an area it's again one is on the national company and other is the international company. National company is very much similar to the Indian company. That means such companies confine their operations within the boundaries of a company in which they are registered. जिस boundary में वो registered हैं और उसी boundary के अंदर वो अपनी सारी activities और अपनी सारे operations कर रही हैं, वो national company होती है. At the same time multinational companies वो होती हैं such companies which extend the area of its operation beyond the countries in which they were registered. जो अपने एक्सटेंड करती है अपने बिजनेस को उस एरिया से ज़्यादा एक्सटेंड करती है जहाँ पर वो रजिस्टर्ड हुई थी. सो मोर और लेस काइंड ऑफ इन फॉरेन कंपनीज जो दूसरी कंट्रीज में आके बिजनेस करती हैं. सो यस, एज वी सीन, हम लोगों ने काइंड्स ऑफ जब कंपनीज स्टडी किया टॉपिक, इसके अंदर वी हैड डिफाइंड द काइंड्स ऑफ कंपनी इनटू द 6 पार्ट. हमने 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन,
किस तरीके से फॉर्म होगी, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कंपनी की डिस्कशन की थी कि इस तरीके से 3 कंपनीज फॉर्म हो सकती हैं. देन वी डिस्कस अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पर भी हमारी कंपनीज डिफाइन हो सकती हैं, दैट इज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. देन पब्लिक इंटरेस्ट के बाद थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स. जब हम लोगों ने शेयर बेसिस पर इसको डिवाइड किया, दैट इज द कंपनी फॉर्म्ड होल्डिंग अप अ शेयर एंड होल्डिंग अप ऑफ एन अ गारंटी. देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल बेसिस पर हम लोगों ने 2 कंपनीज को डिफाइन किया, होल्डिंग कंपनी एंड the statutory company. And then finally we describe it on the basis of nationality. nationality के अंदर हम लोगों ने define किया the Indian company and foreign company, and on the basis of area we define it as national company and multinational company. So for this we are winding up here today, and after on the second part of this session we will going to discuss about more and more about the companies. For today itself, thank you so much.